میں نے ابھی آپ کے سامنے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت۔ اس آیت کا انتخاب میں نے آج کے جمعے کے خطبے میں اس لیے کیا کیونکہ یہ رواں مہینہ جس میں ہم اور آپ ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، کیا صحیح کیا غلط۔ آج انشاءاللہ جمعے کے مختصر سے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں محرم کی کیا اہمیت ہے اور اس سے جڑی کیا بدعات ہمارے سماج میں پنپ رہی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے جب سے زمین و آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے وہ ہے 12۔ ان میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان جب سے بنایا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی شبہ ہے کہ 13 مہینے تھے، آئی 12 بچے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ڈیفینیٹلی 12 ہی مہینے تھے شروع سے لے کے ابھی تک۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے 4 کیوں سے ہیں اور کیوں ہیں؟ پہلے کے زمانے میں دور جاہلیت میں لوگ سالوں سال لڑتے رہتے تھے، کسی مہینے کا، کسی سال کا، کسی دن کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ اسلام میں، اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے لے کر کے آئے اور جب دعوت و تبلیغ شروع کی، 4 مہینے حرمت کے، مشرکین بھی مانتے تھے ان کو، یہ دور ابراہیم علیہ السلام چل رہا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے تھے، اس میں سے ایک مہینہ محرم کا جس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ حرام مطلب یہ، اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا اور جو بھی آپسی جھگڑے ہوا کرتے تھے وہ بند ہو جاتے۔ اور ان 4 مہینوں میں، اس میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے، اس میں بازاریں کھلتی تھی، لوگ آمد و رفت کرتے تھے، تجارتی قافلے نکلتے تھے، ورنہ اور مہینوں میں لوٹ لیے جاتے تھے۔ 4 مہینے ان کی سبھی تعظیم کرتے تھے، چاہے وہ کفار ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے جو ہو۔ یہ دور جاہلیت چلتا چلا آیا۔ 12 مہینے، 12 مہینوں میں پہلا جو مہینہ ہے، پہلا نہیں، ایک مہینہ جو ہے وہ محرم ہے۔ محرم کی اہمیت کتنی ہے؟ پہلی چیز تو یہ احترام کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو احترام کے مہینے میں رکھا۔ حرمت والے جو مہینے 4 ہیں اس میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، فساد، فتنہ، یہ سب بند کر دینا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جن مہینوں میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ اس مہینے میں ہم کو اعمال کرنے چاہیے۔ یہ مہینہ اور کیوں خاص ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنگ و جدال نہیں کرتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ ظلم و زیادتی صرف یہ نہیں کہ آپ دوسرے کا حق مارے یا دوسروں کی حق تلفی کریں، اسی کو ظلم نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت نہ ہو اور اس کے بجائے کسی اور سے ہم مانگیں، کسی اور کے در پہ جائیں۔ اور اس مہینے میں خاص طور سے ایسا ہوتا بھی ہے، ابھی میں آگے بتاؤں گا۔ ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کو سمجھیں، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں۔ اپنے نفس سے ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے اس کو چھوڑ کر کے جبکہ دوسروں کو مزاجی خدا بنا لینا، دوسروں سے اپنی حاجت روائی کرنا، اپنی باتیں کہنا، اولاد دینے والا کسی کو سمجھنا، یہ کلی طور پہ شرک ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے ہم کو۔ تو پہلا جو ادب ہے اس مہینے کا وہ یہی ہے کہ احترام کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے۔ اس میں جنگ و جدال نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے پر ظلم نہیں کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا، شرک سے دور رہنا ہے، سنت کی پابندی کرنا ہے۔ وہ اعمال جو 11 مہینوں میں ہم کرتے ہیں ان سے بڑھ کر کے اعمال اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اس کی تاریخ سمجھ لیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو وہاں دیکھا
कि 10 मुहर्रम को यहूदी और ईसाई ये लोग रोजा रखते थे। जब मालूम हुआ तो पता ये चला, बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, कि हम 10 मुहर्रम का रोजा इसलिए रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन जैसे फसादी से, जालिम से इसी दिन निजात मिली थी। यकीनन वो बहुत बड़ा फसादी था। कुरान मजीद में ऐसे फसादी के बारे में बहुत सारे जिक्र है। इन्ना फिरौन अला फिल अर्द, जमीन में उसने सरकशी कर रखी थी। युज़ब्बिहून अबनाअहुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करता, व यस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था, मार देता था लोगों को। जमीन में सरकशी कर रखी थी। कहता था अना रब्बुकुमुल आला, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इख्तियार दे रखा था, बादशाह बना रखा था, तो उसको वो अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा समझने लगा। कहता मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसको चाहूंगा जिंदा रखूंगा, जिसको चाहूंगा छोड़ दूंगा। तो ऐसे फसादी से बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दिलाई इसी 10 मुहर्रम को। इसी खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम रोजा रखती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वो तो मेरे भाई हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वो तो मेरे भाई हैं, मैं भी रोजा रखूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में रखा और ये भी इरादा किया कि आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो यहूदी और ईसाइयों की मुखालफत करूंगा, 9 को और 10 को रखूंगा, या 10 को और 11 को रखूंगा। क्या फजीलत है इस माह जो है मुहर्रम के रोजे की। जो एक रोजा रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साल गुज़िश्ता के गुनाह माफ हो जाते। एक साल साबिक़ा जो होते गुनाह, उनका कफारा हो जाता है रोजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी है, क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के बाद अगर कोई रोजा है मोहतरम तो वो कौन सा है, सबसे ज्यादा पसंदीदा, वो है मुहर्रम की 10 तारीख का। और मुहर्रम की 10 तारीख में शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने, अल्लाह के महीने। जैसे रमजान के आगे हम लोग रमजान मुबारक लगाते हैं बाबरकत, ऐसे ही मुहर्रम के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगवाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम, उसकी 10 तारीख को रोजा रखना, ये एक साल साबिक़ा। और बहुत सारे नवाफिल रोजे रखते हैं, हर महीने में रखते हैं, लेकिन इस महीने की 10 तारीख को खास तौर से रोजा रखना, एक साल के साबिक़ा गुनाह माफ होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो यहूदियों की और ईसाइयों की मुखालफत करूंगा। तो क्या करूंगा, 10 को भी रखूंगा, 9 को भी रखूंगा, और 10 को भी रखूंगा या 11 को रखूंगा। तो 2 रोजे रखने हैं हम लोग, 9 को और 10 को। अगर 9 को ना रख सके, 10 को 11 को। अगर 10 भी रख रहे हैं तब भी सवाब को पहुंच जाएंगे, सवाब मिल जाएगा, लेकिन उसको कंपलसरी ना करें कि सिर्फ एक ही रखना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम उनकी सुन्नतों पर पाबंदी से अमल करने वाले हैं, तो हमको 2 रोजे रखने चाहिए। तीसरा जो मुहर्रम के ताल्लुक से मुझे बताना है, यही वो महीना है जहां से हमारा इस्लामी साल शुरू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई साल का तायुन नहीं था कि इस महीने को पहला महीना रखा जाए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टाइम पे भी नहीं था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सोचा कि हमारा भी एक साल होना चाहिए, और साल की शुरुआत किससे की, मशवरा किया, तो पता ये चला कि हिजरत से इस्लामी साल शुरू होगा। जो पहला साल शुरू हुआ मुहर्रम के महीने से, और हिजरत को वो सन रखा गया, पहली हिजरी को। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों ने मशवरा दिया होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से रख लीजिए अपना नया साल, कुछ लोगों ने कहा कि बिअसत से नया साल रखिए, लेकिन हजरत उमर दूर अंदेश थे, उन्होंने क्या किया, हिजरत का रखा, क्योंकि हिजरत बहुत बड़ा अमल है। हिजरत के बारे में कुरान में की आयत है, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाह मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फिद दुनिया हसना वल अज्रुल आखिरत अकबर लौ कानू यअलमून। और जिन लोगों ने जुल्म होने के बाद हिजरत की अल्लाह की राह में, कहते हैं हम जो अमाल करते हैं, हमारे कोई भी अमल है, उनमें बड़े जो अमाल हैं, उनमें एक तो हज करना, एक तो कोई गैर मुस्लिम हो मुसलमान बन जाना, ये बहुत बड़े बड़े अमल है। और एक सबसे बड़ा अमल है हिजरत करना। कितना बड़ा अमल है, याद कीजिए वाकया वो जब मक्के में जुल्म सितम हो रहे थे मुसलमानों पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आदेश मिला, हुक्म मिला कि आप हिजरत कर जाइए, तो कुछ सहाबा हिजरत करने का क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ के, यहाँ तक कि बीवी बच्चे, जो सबसे जिनके लिए आदमी जीता है, सारी प्रॉपर्टीज, सारा माल दौलत, सारा कारोबार छोड़ करके अल्लाह की राह में दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, इसको हिजरत बोलते हैं। ये बहुत बड़ा अमल है। कहते हैं कि हिजरत जिसने कर ली अल्लाह की राह में, नियत दुरुस्त है, तो उसके साबिका तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं।
जैसे कोई इंसान इस्लाम लेकर के आए नया नया, उसके साबिका कितने भी गुनाह हो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है कलमे ला इलाहा के इकरार पर। इसी तरीके हज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए किया, नियत दुरुस्त थी, हज मकबूल क्या करता है, साबिका तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। ऐसे ही हिजरत का अमल जो है वो इतना बड़ा अमल है, इंसान मुसलमान सारी चीजों को छोड़ करके अल्लाह के राह में निकलता है। साहबा ने तो ये इतना बड़ा अमल था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी को हिजरी को ही रखा, ईसवी की जगह हिजरी, और मुहर्रम का पहला ये महीना रखा गया जो इस्लामी साल। अच्छा, इसमें एक होता क्या है, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर जनवरी को करते हैं मुआशरे में, ऐसे ही मुसलमानों में कुछ लोग पढ़े लिखे पैदा हो गए हैं, कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल, वो ये मुहर्रम का जो महीना शुरू होता है हैप्पी न्यू ईयर, नया इस्लामी साल मुबारक, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा ये चीज। ये तारीखी चीज है, ये शियार है, इस्लामी पहचान है, हमारी हिस्ट्री है, ये सवाब और अजाब की चीज नहीं है। अगर हम ये चीज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर मुहर्रम में तो ये बिदअत है, ये हमारे सहाबा ने नहीं की, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, तो ये क्या शुमार हो जाता है, ये बिदअत में। लिहाजा इस चीज का ख्याल रख के इस्लामी साल शुरू हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको सेलिब्रेट करने लगे, तो उसको सेलिब्रेशन नहीं करना है। हाँ, हिजरी साल शुरू होता है इसलिए मुहर्रम की अहमियत है। एक और जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, चौथा पॉइंट जो है मुहर्रम के ताल्लुक से, मुहर्रम के महीने के ताल्लुक से, वो है शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यकीनन बहुत बड़ा हादसा, शहादत हुसैन बहुत बड़ा हादसा था, मजलूमाना कत्ल किए गए, शहादत हुई उनकी। एक चीज ये जाननी है, अगर कोई इंसान खासतौर से मुसलमान अगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पे गम नहीं मनाता है, रंज नहीं करता है, या दिल में मलाल नहीं आता है, तो उसके ईमान में कमी। क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत, खासतौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नवासों से मोहब्बत जिस तरीके से थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो हजरत हुसैन की जो शहादत है मजलूमाना, उस पर हमको गम करना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी है कि हम गम कितने दिन करें ये नाना बताएंगे। नवासे के बारे में, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में गम कितने दिन बनाए, ये कौन बताएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हजरत हुसैन की शहादत जो मजलूमाना हुई, उस पर हम गम करें, उस पर हम अफसोस करें। लेकिन मातमे हुसैन करना ये कतान बिदात है, हराम है हर चीज। समझ लीजिए, जितना भी मातम हुसैन लोग करते हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर मातम जो करते हैं, वो कतान हराम है, वो बिदात है। और बिदात क्या है, कुल्लु बिदातिन दलाला और कुल्लु दलालिन फिन्नार, हर खुतबे में पढ़ा जाता है। ये हर बिदात गुमराही है, और गुमराही का ठिकाना कहाँ है, जहन्नम है। हजरत हुसैन से मोहब्बत है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, और सहाबी भी हैं, नवासे भी हैं, अहले बैत में से भी हैं, क्यों ना हम मोहब्बत करें उनसे। मजलूमाना कत्ल किए गए, शहादत दी, यहाँ तक कि हजरत हसन की बात होनी चाहिए। हजरत हसन ने कुर्सी की कुर्बानी दी थी, क्या किया था, तख्त छोड़ दिया था, हुकूमत छोड़ दी थी हजरत हसन ने। क्यों, इस्लाम का शियार बाकी रहे, शरीयत में कोई दिक्कत ना हो, इस्लाम का निजाम जो है वो तितर बितर ना हो। हजरत हसन ने क्या किया था, कुर्सी कुर्बानी दी थी। इसी तरीके से हजरत हुसैन ने इस्लाम पर कोई बात ना आए, अपनी शहादत दी थी, अपनी जान की शहादत दी थी। तो हजरत हुसैन से मोहब्बत है तो गम होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, कोई शख्स अगर इंतकाल कर जाता है, हमारा अजीज, हमारा करीबी, तो 3 दिन से ज्यादा नौहा रोना धोना नहीं होना चाहिए। मातम करना है, किसी के वालिद, किसी की वालिदा, किसी के दादा, किसी की दादी, या कोई भी अजीज इंतकाल कर गया, बेटा बेटी इंतकाल कर गया, क्या करना है, 3 दिन से ज्यादा मातम नहीं कर सकते। कौन कह रहा है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना मोहतरम यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा मातम नहीं होना चाहिए। एक औरतों के लिए छूटे थोड़ी सी, 4 महीने 10 दिन वो इद्दत में रहती है, वो मातम करती है, किसके लिए, शौहर के लिए, बस उनको इजाजत है। बाकी ये जो अभी 1400 साल से समथिंग कुछ हो रहे हैं, हर साल जो मातम हो रहा है, ये कहां से ले आए हम लोग। नवासे की मोहब्बत में इस्लाम का जनाजा निकल रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं हम लोग सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हजरत हुसैन से मोहब्बत है तो नाना से ही मोहब्बत होनी चाहिए। नाना ने क्या कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि 3 दिन से ज्यादा मातम नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अभी भी मातम कर रहे हैं, उनको ये चीज बतानी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी, और सुनिए, अगर आप मातम कर रहे हो, कहते हैं शहादत जिसकी होती है, जिनका जो शहीद होते हैं इस्लाम की राह में, वो मरते ही नहीं है। कुरान की आयत सूरह बकरा की, जो लोग अल्लाह के राह में इंतकाल कर जाएं, शहीद हो जाएं, उनको तो मुर्दा ना, वो जिंदा है, लेकिन तुम जानते नहीं कि जिंदा है।
تو जिंदों का शहादत, जिंदों का मतलब शहादत पे गम, शहादत पे खुशी होती थी। लेकिन हाँ, क्योंकि वो ऐसा करबला का वाकया था, जिस तरीके से मजलूमाना शहीद किए गए, उसकी वजह से रंजो गम तो है, जब भी नाम आएगा रहेगा, लेकिन हर साल मातम नहीं करना है। ये सुन्नियों का मसला नहीं था, ये जिन लोगों ने कत्ल किया था, जो लोग जालिम थे। एक और चीज भी है, जिन लोगों ने कत्ल किया उनको जालिम न कहना, ये भी ईमान के कम होने का हिस्सा है। जिन लोगों ने कत्ल किया वो लोग जालिम, क्योंकि वो मजलूम थे। मजलूमाना शहादत तो उनके साथ हमदर्दी है हमारी, हमारा गम, हमारा रंज उनके साथ। लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया वो जालिम, उन पर अल्लाह का वबाल होगा। जैसी भी सिचुएशन नहीं हो मुझे नहीं मालूम, जो तारीख बताती है जिन लोगों ने कत्ल किया मजलूमाना कत्ल किया। बहुत सारे ऑप्शंस हजरत हुसैन ने रखे थे, तारीख पढ़ लीजिए आप, जो इस्लामी सही तारीख उसको पढ़ लीजिए, तो मजलूमाना कत्ल हुआ। ये चौथा पॉइंट था। एक और पॉइंट है मुहर्रम के ताल्लुक से। हम लोग आजकल अपने मोहल्लों में देख रहे हैं, लोग ताजिया बनाते हैं। ताजिया बनाते हैं ना, कभी रात भर जग के देखिए। जमाने जाहिलियत में हम लोग भी जगते थे, अल्लाह हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ करे। ताजिया होता है, ताजिए की शक्ल होती तो है कागज की और लकड़ी की, लेकिन एक बुत नुमा होता है। और वही सारे काम जो कुफ्फार और मुशरिकीन करते थे और कर रहे हैं आज भी, वही हम मुसलमान करते हैं। क्या करते हैं? अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई उसको समझते हैं। लोग उनके सामने फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, रात भर चिरागा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान के 4 लोग और, जिनको पंचतंत्र क्या बोलते हैं, पाक पंच बोलते हैं, ठीक है। वो 5 नाम उस पे कुछ बनाते हैं, उसके नीचे से बच्चों को निकालते हैं, क्या कहते हैं, जो निकल गया तो उससे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। ये क्या है? ये खुलेआम शिर्क, इसको बिदअत नहीं कह सकते, इसको बिदअत नहीं कह सकते, बिदअत नहीं कह सकते, ये खुलेआम शिर्क है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत पे डाका है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक मानने पे डाका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक मानने पे, मालिक मानने पे डाका है। ये हम अपनी मुश्किल को ताजिए के सामने पेश कर रहे हैं। वो चाहे पत्थर का बुत हो, चाहे वो पेड़ों का बुत हो, चाहे वो कागज का बुत हो, चाहे लकड़ी का बुत हो, वो क्या हाजत रवाई करेगा आपकी? क्या सुनेगा वो? क्या सुनेगा वो? तो ये खुलेआम शिर्क है, इससे बचना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ सुन लिया आपने, वहां जाके तोड़ दिया, ऐसा नहीं, हिकमत के साथ बताना है। इसके बाद एक और चीज मुहर्रम के ताल्लुक से बतानी है मुझे। ये लोग सबीले जो लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, मलीदा बांटते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, इस्लाम में इस पर बड़ा अजर सवाब है। किसी को पानी पिलाना सवाब का काम, किसी को खाना खिलाना सवाब का काम, यतीमों की देखरेख, बेवाओं की देखरेख सवाब का काम। लेकिन खास तौर से उस दिन, जिस दिन हजरत हुसैन की शहादत हुई थी, उस तरीके से उनको पानी मिला था, हम पूरे अवाम को पानी पिलाएंगे, ये बिदअत में आता। किसी एक काम को खास कर लेना और उसको इस्लाम बताना, यही तो बिदअत है। हमको ऐसा काम उसको इस्लाम में शामिल कर दें, वो बिदअत है। तो लिहाजा उससे बचना चाहिए, उसमें चंदा देने से नहीं बचना चाहिए, और उसका पानी पीने, जैसे हम लोग गैर कहते हैं गैरुल्लाह के नाम पर हम प्रसाद नहीं खा सकते, इसी तरीके से उसका शरबत भी नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत गलत है, वो चीज गलत है। हालांकि और दिनों में आप शरबत पिलाइए, पानी पिलाइए, छोले भटूरे खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, सवाब का काम है। भूखों को खाना खिलाइए, प्यासों को पानी पिलाइए, बहुत सवाब मिलता है। लेकिन वो एक खास दिन कर लेना कि मैं इसके गम में, इसकी मोहब्बत में ऐसा करूंगा, नहीं। नवासे से मोहब्बत है, अगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मोहब्बत है तो पहले गालिब होनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। एक और पॉइंट जो मुझे बताना है, इस महीने में क्या होता है, इस महीने में एक और चीज होती है। हजरत हुसैन का नाम लेकर के बहुत सारे सहाबा इकराम को गाली दिया। जो महफिलें होती हैं हमारी मुहर्रम की, उसमें क्या होता है, हम सुन्नियों में ऐसा होने लगा है, ये काम शियों का था। अहादीस है साफ, मेरे साहबा वाली मत दो, ला तसुब्बु सहाबी। इस मुहर्रम के महीने में दीनी मजलिस होती है, शरीयत इस्लाम नाम करके करबला के नाम से जलसे जुलूस होते हैं, महफिलें होती हैं, और गाली सहाबा को दी जाती। मतलब इस्लाम के नाम पर आपने महफिल बुलाई और इस्लाम को ही गाली दे रहे हैं। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मेरे सहाबा सितारों के मानंद, अगर तुम में से हर इंसान ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे और मेरे सहाबा एक मुद्द जौ खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह में, तो मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे सहाबा वाली मत तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कहा,
वाला तसुब सहाबी मेरे सालों वाले। कौन साहबा? किबार साहबा। कहते हैं लोग हजरत हुसैन के नाम पर लोग कहते हैं कि हजरत मुआविया को कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, किबार साहबा में नाम आता है, कातिबीन वही में से हैं वो। कहते हैं हजरत अबू बकर की लोग ताज़ीम करते हैं, हजरत उमर की लोग ताज़ीम करते हैं, हजरत उस्मान की, हजरत अली की, सबकी ताज़ीम करते हैं, लेकिन हजरत मुआविया की नहीं करते। हजरत मुआविया में ही तो आजमाया उम्मत को, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में ही सारी महफिलें साहबा को गाली। और सुन लीजिए, कहीं ना कहीं हजरत अबू बकर को लोग गाली देते हैं। कैसे? शियार जो है उसमें बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनका ये मानना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुरंत खिलाफत मिलनी चाहिए हजरत अली को, और हजरत अली के बाद हजरत हसन या हुसैन को। छीना किसने हक? हजरत अबू बकर ने। तो गाली किसको पड़ती है? अबू बकर। और उनसे कोई बड़ा सहाबी है? उनसे कोई अफजल सहाबी है? तो जो तरतीब इस्लाम में है उस तरतीब को उलट देते हैं लोग। तो सहाबा को गाली नहीं देनी चाहिए, जो ऐसी महफिलों में नहीं जाना चाहिए। सहाबा को गाली देना ईमान की कमजोरी, ईमान रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम तक इस्लाम पहुंचाने वाले सहाबा ही हैं। पहले हिजरत करने वाले, घर बार छोड़ने वाले सहाबा ही तो हैं। इस्लाम पर कुर्बानी देने वाले, इस्लाम को यहां तक लाने वाले सहाबा ही तो हैं। एक और चीज जो आजकल लोग हमारे सुन्नियों में भी हो गया है, 10 दिन मुहर्रम की, ये 10 दिन मुहर्रम की हम गोश्त नहीं खाएंगे, गोश्त हराम, गोश्त हराम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं घर ऐसे घर हैं कि उसमें क्या होता है, गोश्त हराम हो जाता है, और 10 तारीख को फिर खाते हैं, या 10 को हो खाते हैं, वो खाते हैं, उरद खाते हैं, उरद गोश्त खाते हैं, कुछ खाते हैं, बहरहाल 10 दिन गोश्त हराम होता है। किसी भी हलाल चीज को हराम चीज हम नहीं कर सकते। यहां तक कि एक पर्सन को अथॉरिटी थी कि वो हलाल को हराम कर सकते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया। सूरह तहरीम पढ़ लीजिए, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप वो चीजें क्यों हराम करते हैं जो आपके लिए हलाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से मैं शहद नहीं खाऊंगा, शहद हलाल है ना, लेकिन कुछ ऐसा वाकया हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से निकाल दिया अपने, क्योंकि मुंह से जो निकलेगा शरीयत हो जाएगा, कहा कि मैं आज से शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुरंत कहा कि आप हराम हलाल इसको नहीं, जो चीजें हलाल मैंने कर रखी है वो हराम नहीं कर सकते। हालांकि एक दूसरी आयत में कुरान की है कि तुम्हारे पास ऐसे नहीं भेजे हैं जो आपको हलाल और हराम बताते हैं, यही बताने वाले हैं। उन्होंने मजाक में या ऐसे ही गलती से कह दिया कि मुझे शहद नहीं खाना आज के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप हलाल हराम नहीं कर सकते। हम क्या है, एक अदना से उम्मती, कहते हैं हम गोश्त नहीं खाएंगे, गोश्त हराम 10 दिन के लिए। कोई भी चीज हलाल और हराम करने की अथॉरिटी किसी मौलवी, किसी मौलाना, किसी इमाम के पास नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और किसी के पास नहीं। तो गोश्त हलाल था, गोश्त हलाल है, खा सकते हैं बिल्कुल। एक और रस्म होती है इसमें, कहते हैं कि इन 10 दिनों में रिवायात मशहूर हैं, और खासतौर से ज़ईफ और मौजू रिवायत। मौजू मतलब मनगढ़ंत, मैंने कहानी कह दिया आपने मेरी तरफ से, इसको मौजू बोलते हैं, बना बनाया। 10 दिनों में अपने घर वालों पे अगर खूब खर्च कीजिए तो बहुत बरकत होगी। 10 दिनों में दस्तरखान वसी कर लीजिए, खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, खूब खर्च कीजिए, यहां तक कि खूब खर्चा कीजिए। ये रिवायत भी ज़ईफ और मौजू है। एक और चीज जो आखिरी चीज है वो क्या है कि मुहर्रम में हम शादी नहीं करेंगे, हराम महीना, ये हुर्मत वाला है, इसमें शादी ब्याह नहीं करेंगे, ये भी गलत है। मुहर्रमुल हराम मतलब ये नहीं कि आप शादी हराम कर लें, इसमें लड़ाई झगड़ा हराम था। शादी निकाह ब्याह अच्छे काम सारे कर सकते हैं इसमें। आप पहले गोश्त हराम किया, फिर पूरा महीना हराम कर दिया, और इसमें कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे। जबकि हराम का मतलब ये होता है मुहर्रम हराम का कि इसमें आप लड़ाई झगड़ा हराम है, मारपीट हराम है। क्यों? क्योंकि पहले 8 महीने 12 महीने लोग लड़ते रहते थे दौर जाहिलियत में, फिर बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 महीने हुर्मत के बना दिए। मुशरिकीन भी इसका ताज़ीम करते थे, कुफ्फार भी ताज़ीम करते थे। इन 4 महीनों में लड़ाई नहीं होती थी, बाजारें खुलती थी, शॉपिंग होती थी, लेन देन होते थे, शादी ब्याह होते थे। क्या हम दौरे जाहिलियत से भी तरक्की कर गए हैं आज कि आज हम मुहर्रम के महीने को हराम समझते हैं? तो ये चंद बातें थी मुहर्रम के ताल्लुक से जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना रब्बिल आलमीन।